So when you started your journey, okay, so then what were the things you started doing in terms of, because songwriting or voiceover? How did you discover that? Like what? Okay, this is my calling, for example. Well, like I said, I was in Hutchings, which is a convent sort of an atmosphere. So till my 11th standard, I did not sing even a single Hindi song. Okay. There was not a lot of music like exposure at my home. We never used to listen to music together. कि चलो Correct. आज ये record लगा के सुनते हैं. हाँ. So cricket नहीं देखते थे. ज़्यादा culture entertainment का नहीं था. It was about work study, right? तो जब मैं 11th 12th में आया तो मैंने देखा कि okay, now I met people who are not from a convent because I'm in Warriors. Right. And they used to love Hindi songs and मैंने भी try किया गाने का because my voice was great. And I found that I started singing those Hindi songs in a very English manner. हाँ. You know? Correct. तो वो एक difference था. Either people hated it or they loved it. हाँ. There was nothing in between. Right. तो मैंने सोचा यार मैं दूसरों के गाने थोड़े नहीं गाता हूँ. I have this unique style of singing. Correct. Let me try and pen down my emotions. Okay. And I started writing. Okay. I did not know an instrument. So the first thing that I did when I joined engineering is rather than picking up a book, I picked up a guitar. Okay. From my senior. हाँ. Hostel में instead of unfortunately attending lectures, I used to be in my hostel room trying to figure out G, C and D. तो B तो पता नहीं क्या हुआ. Yeah. G, C and D. The chords you got it. Right. And उसी में मैंने अपना पहला गाना लिखा about a certain emotion that I felt in my life. All my songs are excerpts from my life. तो मैंने कुछ सिंपल सा लिखा, बड़ा ही सिंपल है. अभी मेरे को शायद वो इतना अच्छा नहीं लगता, बट वो पहला था. Correct. स्पेशल. तो मैंने लिखना शुरू किया. And like people say कि तुम कुछ करना शुरू करते हो और उसको करते रहते हो तो you keep getting better at it. Right. And yeah, that's how it started for me, songwriting. Okay. Because I did not want to go into covers or Bollywood or Hollywood songs. I decided that let me pen down my own emotions and let me sing them. Right. मेरी audience शायद कम होगी because people discovery mode में कम रहते हैं and they want to listen to songs that they love. Correct. But then I think independent music today is in a very good space where people are ready to discover new things. Absolutely. So yeah, that is how my journey started as a sound. Amazing. And then how did Saregama happen? And describe that journey as well. Right. So my wife was pregnant basically in 2016. She got her maternity leave. And I was working and gigging in clubs because I loved music. Couldn't stop myself from going there. उसने देखा कि ये बंदा सो तो रहा नहीं है, 2-3 घंटे सो रहा है. 6 महीने की छुट्टी है, सैलरी आएगी तो भाई साहब को बोलते हैं 6 महीने दे देते हैं इसको. अच्छा. तो उसने मेरे को 6 महीने दे दिए. Okay. विद नोटिस कि यार 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो तेरे पास 8 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, कहीं भी ज्वाइन कर लेना. Correct. तो मैं बोला ठीक है, अब there's a baby on the way, शालिनी is pregnant, बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं घर पे. मेरी सैलरी नहीं है because I've quit the job. Yeah. Now club shows is not the thing. I have to gun big. Correct. So I have seen that if I put myself in such a situation, whenever I have put myself or whenever इस प्रकृति ने मुझे इस situation में डाला है जहाँ पे भाई आर्या पार करना है मुझे, तो मैं आर्या पार कर देता हूँ. Correct. तो thankfully at the time बहुत हाथ पैर माने मैंने. And मतलब उसके पहले मैं सोनी मिक्स वॉइस ऑफ पूना जीत चुका था, तो मैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह चुका था. करेक्ट. एंड बोलते हैं कि मेरी दादी माँ बोलती थी कि तकदीर के साथ तदबीर दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना तभी आपकी ज़िंदगी बनती है. Right. आप कितना भी तदबीर कर लें, आपकी तकदीर नहीं है तो कुछ नहीं होगा. कुछ होने वाला. मैंने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं सारेगामापा जैसे शो में जाऊँगा बिकॉज बिफोर 2016 द लास्ट विनर was Jasraj Joshi from Pune. And prior to that were all classical singers. तो मैंने सोचा भाई मेरा तो क्या होगा यार, मतलब मैंने सीखा भी नहीं है क्लासिकल. Right. मतलब मैं किशोर कुमार जी के भी के पे नहीं हूँ, उन्होंने भी नहीं सीखा था, बट मेरा टोटली डिफरेंट जॉनरा है, एक इंग्लिश और रॉक सॉर्ट ऑफ जॉनरा है. बट जब मैं गया और ऑडिशन दिया मैंने ऐसा गाना चुना जो शायद किसी और को नहीं पसंद है बिकॉज माई टेस्ट इज डिफरेंट एज अ पर्सन, एज अ म्यूजिशियन. तो वो गाना उनको अच्छा लग गया और उनको वैसा फ्लेवर चाहिए था उस साल उस शो में. एंड तो मेरी जो इतनी तदबीर थी तब तक की कि यार नहीं, आई विल नॉट डू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी फेमस. आई वांट टू क्रिएट माय नीश. तो वो नीश वहाँ पे उस समय में उस मोमेंट में उनको पसंद आ गई. ओके. एंड इट क्लिक्ड. दैट्स हाउ सारेगामापा हैपेंड. ओके. आई विल वेरी वेरी ऑनेस्टली से कि मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग एलिमिनेट हुए मेरे पहले. बहुत ज़्यादा.
बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ें मेरे पहले एलिमिनेट हुई, बट मैं तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता था वो लोग जो मुर्कियाँ करते थे एंड ऑल दो स्टफ, बट जो मैं करता था वो भी शायद वो नहीं कर कर पाते, सकते थे, correct, राइट? हाँ. सो दैट वाज द डिफरेंस, आई मीन Okay. as long as you find your niche, Hmm. no one can stop you, you'll always have a crowd. Hmm. 10,000 नहीं होंगे, 100 होंगे, बट 100 जान दे देंगे आपके लिए, Right. मतलब because Right. they love you that much. Hmm. Yeah. And so, but I understand Saregama, the whole journey is really exhausting because, Right. you know, there's elimination, you have to check 2 songs, Right. and then I guess there's voting and things, a lot of Right. things, you know. Right. But then, how is life after Saregama Pa, and how did that platform help you? I think it was the best thing to happen to me. लोग आजकल बहुत सारी रील्स बनाते हैं अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम. Hmm. आई थिंक एक तरह से करियर फ्रीडम मिल गई थी मेरे को, Okay. because people started knowing me. I started being able to thrive on music because I started charging more. मैं टीवी पे आ गया था, Hmm. एंड एक दिशा मिल गई थी मेरे को कि ठीक है चलो, अब एटलीस्ट मैं म्यूजिक में कुछ कर सकता हूँ, स्टेज के आसपास रह सकता हूँ. बराबर. लोग फिर भी मुझे मेरे गानों के लिए नहीं जानते थे, मैं फिर भी सॉन्ग राइटर बनना चाहता था, Hmm. बट एटलीस्ट म्यूजिक के लिए तो जानते थे, बिकॉज मेरी एकमात्र हमेशा एक तरह से एक गोल, एक लक्ष्य रहा है लाइफ में कि कहीं पे कोई मुझे सुन ले, Correct. मुझे देखे भी हाँ. नहीं तो पहचान ले कि ये लक्ष्य है. Hmm. दैट्स माई गोल. Okay. मेरा और कोई बहुत बड़ा बंगले, मर्सिडीज, ये सब का गोल नहीं है. Right. बट कहीं पे कोई अनजान व्यक्ति जो मुझे जानता नहीं है पर्सनली, अगर मुझे सुन के मुझे पहचान लेना, दैट इज इनफ फॉर मी. Okay. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. Hmm. तो आई थिंक वो एक स्टार्ट था उस जर्नी का कि हाँ चलो, लोग मुझे अब मेरे म्यूज़िक के लिए पहचानने लगे हैं, मेरी आवाज़ अलग है, मेरे गाने का तरीका अलग है, तो लोग वो समझ में आने लगा है लोगों को, चाहे कुछ लोग हों वो. तो दैट स्टार्ट वाज रियली ग्रेट. सारेगामापा वाज अमेजिंग. एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड डूइंग बिगर शोज. शालिनी नेवर वेंट बैक टू वर्क Okay. because the baby came and she had the freedom now to give time at home and give me the freedom to travel for shows. Right. तो वो सब शुरू हुआ. आई थिंक 2020 तक काफ़ी कुछ अच्छा चला म्यूजिक में. Right. Everything Right. was great. Right. 2019 में I was also a part of The Voice. Okay. अदनान सामी सर के. Yeah. And that was again, वो बोलते हैं ना, एक शो का एक रेडियस होता है, फिर एक नया जनरेशन आ जाता है, उनको भी आपको देखना होता है, तो आप एक और शो में जाते हो. तो that's how Voice happened. Correct. एंड या उसके बीच में कुछ प्लेबैक्स हुए, कुछ अपने गाने निकालने की कोशिशें हुई जो नाकाम रही, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक ओके, मतलब बॉलीवुड टाइप सिंगर है ये. हाँ. उस तरह से एसोसिएट है, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो. Correct. लोग स्टीरियोटाइप बहुत जल्दी कर लेते हैं आपको कि हाँ अच्छा ये रियलिटी शो सिंगर है, ये प्लेबैक सिंगर है, ये इंडिपेंडेंट सिंगर है. तीनों एक साथ होना लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. एंड दैट्स वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट नीश. Okay. So yeah, I still wanted to form the niche of the songwriter vibe, but I had to also thrive. I had to also make sure that I continue shows. Correct. And that was only in Bollywood. The money was coming only because of Bollywood songs. Right. So yeah, that's what I was doing. So we're getting a request for you to sing a song because we want to know their exact style because we're just all curious. So Right. can you kuch panktiya for us? Can you just? Sure. I think Yeah. most people know me for this song because Yeah. Kunal Ganjawala sir stage पे आ गए थे. Amazing. When I sang this, so it's like, oh हमदम सुनियो रे, oh जानिया सुनियो रे, oh जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चांद आएगा, oh हमदम सुनियो रे, oh जानिया सुनियो रे, oh जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चांद आएगा. Amazing.